दिव्य सन्निधिगे ना बरुवे स्वामी निನ್ನ
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಲವು ದೇವನಿನ ನಾಮವು ವರ್ಣಿಸಲಾರದು ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಲವು ದೇವನಿನ ನಾಮವು ವರ್ಣಿಸಲಾರದು ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ಯೆಹೋವಾ ಯೆಹೋವಾ ನನ್ನ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಯೆಹೋವಾ ಯೆಹೋವಾ ನನ್ನ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವವನೇ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗೆ ನನ್ನ ಕಾಯುವಾತನೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವವನೇ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗೆ ನನ್ನ ಕಾಯುವಾತನೇ ಯೆಹೋವಾ ದೇವಾ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಯೆಹೋವಾ ದೇವಾ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವನು ಹೇಗೆ ಯಾವನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ವಾಸಕಟ್ಟವನು ಎಂಥವನಾಗಿರಬೇಕು ಅವನು ಸಜ್ಜನನ್ನು ನೀತಿವಂತನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸತ್ಯವಚನವನ್ನು ಆಡುವವನು ಆಗಿರಬೇಕು ಅವನು ಚಾಡಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವವನು ಯಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವವನು ಆಗಿರಬೇಕು ಅವನು ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸೇರಿಸದಿದ್ದವನು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವನು ನಷ್ಟವಾದರೂ ಪ್ರಮಾಣ ತಪ್ಪದವನು ಆಗಿರಬೇಕು ಅವನು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೇಳದವನು ನಿರಾಪರಾಧಿ ಬೇರೆಗಾಗಿ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವನು ಆಗಿರಬೇಕು ಇಂಥವನು ಎಂದಿಗೂ ಕದರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿರ್ಮಲಿಸಿದ್ದರು ಧನ್ಯರು ಅವರು ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವವರು. ಮಹೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ಶುಭಪಂಚದ ಶರಣಸಾಗರವನ್ನು ದಯಮಯ ಒಡೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ದೇವಾಲಯ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಯೇಸಪ್ಪ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನು, ಕುರಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನಾಗಿದೆಯ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಕರ್ತನೆ, ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮರೆಯದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ
ಹೇಳಂತೆ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಏಸಪ್ಪ. ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನಗೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ಜೀವದಿಂದ ಇರುವುದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವುದು ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು ಅದು ನಿನ್ನ ದಯಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಆಗೋದಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ. ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದ್ದರೂ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ ಇದ್ದರೂ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರ್ತನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಏನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವುದು ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅದು ನೀನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ. ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ತಲೆ ಬಾಗಿಕೊಂಡು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಏಸಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನ ದಯೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊರೋನಾಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಹಾಮಾರಿ ಈ ದೇಶವನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಆಳ್ತಿರುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಲ್ಲಕೊಲ್ಲವಾಗುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಶಾಂತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಶಾಂತಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವಾಮಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸು ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿತ್ಯವೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಮುಚ್ಚಿರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಆಲಯಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಬರುವಂತ ದಿನಗಳು ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೆಸರೆಸರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ ಬಲ್ಲಂತ ದೇವರೇನಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಕರ್ತನೆ. ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನೀನು ಅವರನ್ನು ಕೃಪೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಲೆಬಾಗಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ಈ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೆಸರಿಸರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನೆಮ್ಮದಿ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಭಯ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಏಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಒಂದೇ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮಳೆಯ. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। आज के इस बुधवार की आराधना में आप सभी का स्वागत करते हैं। वचन को हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 5वां अध्याय 8वां वचन हम पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद देते हुए आपके सम्मुख में आते हैं। फिर एक बार आज के दिन इस वचन को मनन करते समय इस वचन के ऊपर आपकी आशीष दे और इस वचन के द्वारा हम सभी से बातें करें और हम सभी के लिए एक नई सीख, एक नई आत्मिक आशीष देने के लिए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो जो हम पर्वतीय संदेश के ऊपर मनन करते आ रहे हैं। परमेश्वर का सेवक इस तरह से कहता है कि beatitudes are the spiritual progression towards the Christ likeness। मतलब ये जो पर्वतीय संदेश के एक एक संदेश है, ये सारी बातें जो है हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बनने के लिए मदद करती हैं। और इसीलिए आज का जो संदेश है, मन के जो शुद्ध है या फिर हृदय के जो शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। हृदय के शुद्ध को अगर हम कहेंगे, इस बात को वही व्यक्ति जान सकता है जो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। और इतना ही नहीं बल्कि वह अपने जीवन को प्रभु के लिए जीना चाहता है। He will only understand the purity of God, the purity of
हार्ट। परमेश्वर की शुद्धता और मन की शुद्धता को वही जान सकता है। तो हम इस वचन के अंदर अगर देखते हैं, इस बेटिट्यूड के अंदर, इस वचन के अंदर 3 शब्द है, 3 keywords are there. One is pure, second heart, third seeing God. पहला अगर हम देखेंगे कि शुद्धता, फिर हृदय, फिर इसके बाद जो है परमेश्वर को देखना, seeing God. These 3 keywords are there. 3 keywords के ऊपर हम मनन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हृदय, हार्ट। हार्ट के बारे में अगर हम कहें तो मनुष्य के जीवन में बिना हार्ट के नहीं रह सकता है, बिना दिल के नहीं रह सकता है। और इसीलिए दिल या फिर हार्ट जो है, हृदय जो है, ये बहुत ही पावरफुल ऑर्गन माना जाता है। हमारे शरीर के अंदर के हिस्से के अंदर ये हिस्सा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसीलिए कुछ वैज्ञानिक लोग, उन लोग ये कहते हैं कि हमारा हृदय जो है, हमारा दिल जो है, इतना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 1 घंटे में करीबन 150 किलो के व्यक्ति को हम 3 माले की बिल्डिंग को ऊपर जितना उठाएंगे उतना शक्ति, उतना एनर्जी प्रोड्यूस करता है। Not only that, somebody says like that, 12 घंटे की एनर्जी जो है ये 65 टन यानी कि 650 किलो वाले टैंक को उठाने की इतनी शक्ति ये दिल जो है पैदा करती है। और इतना ही नहीं है, और एक व्यक्ति कहता है अगर 70 साल आदमी जीता है तो इन 70 सालों के अंदर जो पंपिंग करते हुए हार्ट जो एनर्जी, जो ऊर्जा उत्पन्न करती है, वो करीबन बैटलशिप यानी कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, युद्ध करने वाले जहाज, वैसे जहाजों को उठा सकते हैं, उतनी शक्ति ये प्रदान करते एक मनुष्य का हृदय। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना पावरफुल है। ये फिजिकल हार्ट के बारे में यानी कि शारीरिक रूप में रहने वाले अंग के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम बाइबल में देखते हैं या फिर ये कहेंगे जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम फील करते हैं अपने जीवन में, दैट इज अ हार्ट। वो एक हृदय है, वो एक दिल है। और उसी दिल के बारे में, उसी मन के बारे में, उसी हृदय के बारे में परमेश्वर यहाँ पर कहता है दैट इज अ ग्रेट हार्ट। वो जो है बहुत ही महान हृदय है कहा जाता है। और इस हृदय के अंदर क्या क्या आती है? नॉट ओनली फिजिकल हार्ट बट इज अ ग्रेटर हार्ट, दैट इज अ स्पिरिचुअल हार्ट। इसके अंदर क्या है? इट इनकॉर्पोरेट्स योर माइंड। वो तुम्हारे माइंड को, इट कम्स इन द माइंड, माइंड कम्स इन दैट, यानी कि आपके मन भी, दिमाग भी आ जाता है, आपके भावनाएं उनके अंदर आ जाती हैं, आपकी लोगों के प्रति जो फीलिंग्स होते हैं वो उसके अंदर आ जाती है। एंड ऑल्सो द विल पावर भी जो है इसके अंदर आती है। तो ये हृदय क्या है बना हुआ है? द हार्ट, इट इनकॉर्पोरेट्स योर माइंड, इमोशंस, अफेक्शंस एंड विल। ऑल दिस थिंग टुगेदर इट बिकम्स अ हार्ट, द स्पिरिचुअल हार्ट। और इसीलिए जो है यिर्मयाह ये कहता है, प्रवादी यिर्मयाह ये कहता है, यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 9 and 10, 9वां और 10वां वचन ये कहता है कि दिल या फिर हृदय जो है सबसे धोखा देने वाली बात है। और इसीलिए इसको संभाले रखना बहुत ही प्रामुख्य कहता है। हार्ट इज डिसीटफुल and it is a beyond cure, that's what it says. So that is why heart is like a dynamite. ये जो है एक डायनामाइट की तरह है जिसे हमें संभालना है। और इसीलिए हमारे बहुत बड़े रिफॉर्मेशन किए हुए व्यक्ति डॉक्टर मार्टिन लूथर ये कहते हैं, I am more afraid of my own heart than the Pope and the cardinals. मतलब मैं अपने हृदय, अपने दिल से इतना डरता हूँ, क्योंकि इससे डरता हूँ, पोप और कार्डिनल से उतना नहीं डरता हूँ करके कहता है। और इसीलिए जो है आज हमारे लिए ये हृदय, ये दिल जो है इतना प्रामुख्य है। और इस सभी लोगों ने, बाइबल में अगर हम देखते हैं, शुरुआत से लेकर हर एक व्यक्तियों ने एक चाहत रखी। वो चाहत क्या थी पता है? शुद्ध हृदय के बारे में, शुद्ध मन के बारे में। शुद्ध मन को उन्होंने चाहा। The clean heart they always longed. एजेकिएल जो है अपने वचन के अंदर पूर्ण रूप से ये कहता है कि मेरे पत्थर वाली हृदय को निकाल कर, कठोर वाले हृदय को निकाल कर, मांस वाले हृदय को मेरे जीवन में मेरे लिए दे कर कहता है। Is longing for that heart of flesh, a new heart, एक नया हार्ट, एक नया शुद्ध हृदय जो है वो उसकी अपेक्षा करता है।
तो ये हम देख रहे हैं कि हृदय के बारे में यहाँ पर, और इसके बाद अगर हम थोड़ी सी अगर ध्यान देंगे, दूसरा शब्द जो हमने सुना है प्योरिटी यानी कि प्योर, इस शब्द के बारे में अगर हम देखते हैं, ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया गया है कैथिरोस। कैथिरोस एक ग्रीक शब्द में इसका अर्थ जो है इस तरह से जाता है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यानी कि शुद्ध पीने वाला पानी जो दर्शाता है, इट इज यूज्ड फॉर दैट। ओके, और एक चावल के दाने जो है खेत में से निकलकर उसको निकाल कर उसके छिलके निकालने के बाद किस तरह से शुद्ध रहता है, कितना अच्छा रहता है, उस तरह की जो है शुद्धता के बारे में ये कहता है। दिस इज कॉल्ड एज द प्योर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, द ग्रेन विच इज विनोड। नॉट ओनली दैट, उतना ही नहीं बल्कि ये कहता है कि हर एक मेटल्स जो भी पीतल तांबा ये सब रहता है, अगर सच्चा पीतल है, अच्छा एल्यूमिनियम है, तो उसके अंदर प्यूरिटी होता है, उसके अंदर मिक्सचर नहीं होता है, उस तरह का शुद्धता के बारे में बात कर रहा है। दिस इज कॉल्ड, यदि ये शब्द जो है ग्रीक शब्द का अर्थ होता है। और मेडिकल के हिसाब से उन्होंने ये कहते हैं कैथार्टिक कैथेटर हम लोगों को डाला जाता है, यानी कि हमारे जब भी ऑपरेशन हुआ होता है कैथेटर डालते हैं, हम सभी को पता है क्या है, हमारे शरीर की अशुद्ध चीजों को वहां से निकल जाता है। कैथार्टिक कहते हैं इन सर्जरी के अंदर, वहां पर क्या होता है, वो जो भी इन्फेक्टेड एरिया होता है, जो दूषित एरिया होती है, स्थान होता है, उसे शुद्ध करना, दैट इज कॉल्ड कैथार्टिक। साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक के हिसाब से अगर हम देखेंगे, काउंसलिंग सेशन जब लिया जाता है, वहां पर कैथारसिस करके एक मेथड वो यूज करते हैं, जहां पर इट्स अ क्लेंसिंग ऑफ द सोल एंड द माइंड। मतलब यहाँ पर तुम अपने आप को, अपने मन को, अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं प्रोसेस के अंदर। सो दे यूज ऑल दोस थिंग्स, सो दैट इज व्हाई गॉड इज टेलिंग, यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है, एक ऐसा हृदय जो सबसे पावरफुल है, लेकिन वो पावरफुल हृदय के अंदर शुद्धता अगर इस तरह से आ गई तो क्या हो जाता है, देन इट बिकम्स अ ग्रेटर थिंग, सबसे बड़ी बात बन जाती है। और ये कहता है यू नीड टू हैव दैट प्योरिटी ऑफ हार्ट। ये प्योरिटी ऑफ हार्ट को दर्शाती है, यानी कि मन की शुद्धता को दर्शाती है। इसके अंदर हम दो चीजों को देखेंगे, व्हाट डज द प्योरिटी ऑफ हार्ट हैज, यानी कि क्या क्या होती है शुद्धता, शुद्ध हृदय के अंदर। सबसे पहले अगर हम कहेंगे, इसका प्रतिरूप ये है, इट शोज द इनवर्ड प्योरिटी, यानी कि अंदरूनी शुद्धता के बारे में बात करती है, वरन बाहर की शुद्धता के बारे में नहीं। इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन जस्ट लेट मी पुट टू यू, मैं आप लोगों के सामने डाल देना चाहता हूँ, हर एक विश्वासी का जीवन, मसीही जीवन, ये किससे संबंधित है, हमारे हृदय से संबंधित है, हमारे दिमाग से नहीं है संबंधित। प्लीज लिसन टू दिस, माइंड कितना भी स्टडी कर ले, लेकिन हृदय में जो एक्सपीरियंस होती है उसकी और उसकी तुलना कभी नहीं हो सकती है। हाँ, लेकिन ये हृदय के अंदर अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो तुम्हारा मन भी, माइंड भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने पहले कहा, इस हृदय के अंदर माइंड भी आ जाता है, फीलिंग्स भी आते हैं, भावनाएं भी, सब कुछ आ जाता है। और इसीलिए सो दिस हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द प्योरिटी इनवर्ड, अंदर की, हृदय की। सो व्हाट इट सेज, इफ गॉड इज इन योर हार्ट, देन द राइट डॉक्ट्रिन विल कम इन योर हेड। अगर वो परमेश्वर तुम्हारे हृदय में है, अंदर से है, तुम्हारा मन, हमारा विवेक भी जो है वो भी सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। और इसी बात को लेकर कई बार यीशु मसीह के साथ फरीसी लोग जो है डिस्प्यूट यानी कि आर्गुमेंट करते थे। क्या आर्गुमेंट किया करते थे, वो ये कहते थे कि हमें हाथ धोना, सब्बत के दिन पवित्र रहना, सफेद कपड़े पहनना, ये सब चीजें जो है बाहरी जो चीजें हैं शुद्धता को दर्शाती है, बाहर रूप से जो शुद्ध रहने की बात करते हैं, अच्छा दिखने की बात करते हैं, वो करते थे वे लोग। लेकिन यीशु मसीह जो है हमेशा हर बार उनके सामने उन लोगों को और हम सभी लोगों को ये कहा करता कि अंदरूनी शुद्धता की बहुत ही जरूरत है। He was always talking about the purity of your heart, तुम्हारे शुद्धता के, तुम्हारे हृदय की शुद्धता के बारे में वो हमेशा बातें किया करता है। He says, you are clean outside, तुम बाहरी रूप से तो शुद्ध हो, लेकिन तुम्हारे अंदर रूप से तुम शुद्ध नहीं हो। तुम्हारी भावनाएं किस तरह से है, तुम्हारा इंटेलेक्चुअल, तुम्हारी मेंटल कैपेसिटी कैसी है, तुम्हारा एफेक्शन, तुम्हारा विल, तुम्हारे हृदय, ये सब चीजें क्या है, अंदर से क्या है वो कहता है। और इसलिए मत्ती उसका 15वां अध्याय 18वें वचन में ये कहा उन्होंने कि मनुष्य को जो है
बाहर से जो अंदर जाती है वो अशुद्ध नहीं करती है, बल्कि मनुष्य के अंदर से जो बाहर आती है, जो हृदय से बाहर आती है, वो अशुद्ध करती है। दैट इज व्हाई आई वाज टॉकिंग, इट इज द इनवर्ड प्योरिटी, तुम्हारे अंदर की शुद्धता के बारे में बात करता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर जब सॉल राजा बन गया, लोगों के नजर में वो बहुत ही टॉल, हैंडसम, सब फीचर्स थे उसके अंदर एक राजा बनने का। ऑफ कोर्स कुछ दिनों के लिए राजा भी था, लेकिन लेटर ऑन व्हाट गॉड सेड कि मैं जो है एक ऐसे व्यक्ति को अभिषेक करने वाला हूँ। अब फिजिकल स्टेचर, आउटवर्ड अपीयरेंस नहीं इंपॉर्टेंट था। he changed his perspective and said that I will not only look at the outside but I will look at the heart. मैं जो है बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंदर के हृदय को मैं देखूंगा करे कहते हैं। और इसलिए दाऊद को उन्होंने चुना और उन्होंने कहा कि मैन लुक्स एट द हार्ट, लुक्स एट द बॉडी, फिजिकल थिंग, आउटवर्ड अपीयरेंस, बट गॉड लुक्स इनसाइड। परमेश्वर जो है हमारे हृदय को देखता है। इसलिए इस सर्मन ऑन द माउंट, इस वचन के आधार पर एक कहना चाहते हैं, द हार्ट राइचियसनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे हृदय की शुद्धता या धार्मिकता के बारे में वो ज्यादा महत्व देते हैं और इस बात को जताते हैं। इसलिए आज मुझे और तुम्हें जो है द प्योरिटी ऑफ इनवर्ड प्योरिटी आई शुड रिक्वायर, अंदर की जो है शुद्धता को मुझे लेकर आने हैं। अंदर की शुद्धता और एक बात को दर्शाती है, क्या है वो पता है? प्योरिटी ऑफ हृदय की शुद्धता केवल अंदर की शुद्धता ही नहीं बल्कि और एक बात को दर्शाती है। क्या है? इट इज अ सिंगल माइंडेडनेस या फिर फोकस्ड माइंड, यानी कि एक ही बात करना, सिंगल माइंड, नॉट डबल बट सिंगल माइंड। यहाँ पर हम देखते हैं सिंगल माइंड का मतलब क्या होता है? एक ही चीज हम रखकर एक ही फोकस रखना है हमारे जीवन में, और एक ही फोकस रखकर उस फोकस को ही मुझे पूरा करना है। सो माय फोकस विल बी व्हाट? नाउ सिंगल माइंडेड हार्ट मुझे रखना है तो क्या करना है? आई नीड टू फोकस टू हैव द प्योरिटी ऑफ हार्ट। मनुष्य जो है हम दो, हमारा हमेशा बैटल रहता है, इट इज ऑलवेज देयर। हर एक विश्वासी जन, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये प्योरिटी ऑफ हार्ट को हम विश्वासी जान सकते हैं। तो दो तरह की हमेशा युद्ध चलती है हमारे दैनिक जीवन में। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक ओल्ड नेचर है, एक जुना स्वभाव का व्यक्ति रहता है, और एक नया स्वभाव जो यीशु मसीह को पाने के बाद, बट दे आर ऑलवेज इन द कॉन्फ्लिक्ट। क्यों? क्योंकि हमारा फिजिकल बॉडी है, हम लोग सिंफुल वर्ल्ड में, इस पाप की दुनिया में हम रह रहे हैं, इट इज वेरी नेचुरल। और इसलिए आज हम दो चीजों से हमेशा, एवरी टाइम वी फाइट, हम हर दिन जो है फाइट करते हैं। लेकिन इस फाइट करते समय पर एक ही एक फोकस रखना है, एक ही एक फोकस रखना है। क्या फोकस रखना है? इनवर्ड प्योरिटी। ओल्ड नेचर के लिए नहीं बल्कि नए नेचर को हम ये करना है। और इसीलिए हर दिन में जो नए नेचर को जो हम खिलाते हैं, यानी कि नई आत्मा, जो हमारी आत्मा को हम जो खिलाते हैं, वही ज्यादा ताकतवर होते जाएगा। अगर हम ओल्ड नेचर के, ओल्ड स्वभाव के हर एक पापों को लेकर, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहता हूँ, उसके अंदर सब जानते हैं, ओल्ड नेचर को अगर हम ज्यादा महत्व देंगे, उसको ज्यादा खिलाते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल गंदी बातें करना, गंदे विचार लाना, बुरे बातों को सोचना, बुरी बातों को करना, ये सब चीजें क्या थी? ये पहले का नेचर, स्वभाव, पहले का स्वभाव था। लेकिन अभी के स्वभाव क्या है? प्यार, धीरज, प्रेम, यू नो, ऑल दिस काइंडनेस, ये सब चीजें जो है अभी नए नेचर के अंदर। ये सब जो है इधर से इनके दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। लेकिन मुझे किसको ज्यादा महत्व देना है? इन चीजों को ज्यादा महत्व देना है, तो ऑटोमेटिकली वी विल कम। वॉचमैन नी इस तरह से कहते हैं, परमेश्वर के एक बहुत बड़े सेवक चाइना के, वो ये कहते हैं, इट इज फॉर मी व्हेन आई डिसाइड इन द मॉर्निंग फ्रॉम द बेड, व्हेन आई गेट अप, मैं जब सुबह उठता हूं बेड पर से, तभी मैं निर्णय लेना है कि आज मैं किसको जिताऊंगा, जुने स्वभाव को जिताऊंगा या नए स्वभाव को जिताऊंगा। नए स्वभाव को जिताऊंगा, अगर मन में ठान लिया, उस बात को चला दिया, it will be happening. So the purity of it is single mindedness, even though there are two things, but एक फोकस रखकर मुझे चलना है। इसलिए अपोस्टल पॉल अपोस्टल ने क्या किया? He said, I do one thing, मैं केवल एक ही एक चीज करता हूँ, वो है फोकसिंग ऑन गॉड्स गोल। परमेश्वर ने जिस चीज के लिए मुझे पकड़ा है, मैं उसी चीज को पूरा करते जाऊंगा। आई फोकस, फिलिपियोस का 3 अध्याय 12 से 14 वचन में हम पाते हैं, आई प्रेस ऑन टुवर्ड्स द गोल, वन फोकस and going ahead with the heart of the purity. I
अपोस्टल जेम्स की पुस्तक में, पूरे किताब के अंदर अगर हम देखते हैं, वो ये कहना चाहते हैं, डबल माइंडेडनेस मत रहो, बल्कि बी स्टेबल विथ वन माइंड, एक माइंड के साथ आप रहे। और एक माइंड के साथ रहते समय हमें क्या क्या करना है पता है? यू नीड टू कंट्रोल द लस्ट, यानी कि आप अपने सारे जीवन में रहने वाले हर एक लालसाओं को, उनका नाम उन्होंने दिया है द लायन ऑफ लस्ट, मतलब लालसाओं के शेर को काबू में कर लो। द फायर ऑफ हेल, नरक की आग जो तुम्हारे जुबान से निकलती है कई बार, उस जुबान को काबू में कर लो। और उसके आगे कहता है टेम योर थॉट्स, मॉडरिंग थॉट्स करके लिखा। मॉडरिंग थॉट्स मतलब कई बार हम लोगों को जो बातें करते हैं, जिसके द्वारा मर्डर करते हैं, वो थॉट्स, वो विचारों को भी तुम जो है काबू में रख लेना है। ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू टेम इट, देन ओनली यू विल बिकम प्योर, तब जाकर आप जो है प्योर बनेंगे। और इस चीज को करने के लिए मुझे और तुम्हें जो है परमेश्वर क्या देखता है पता है? आज ये देखता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी अपने जीवन में इस शुद्ध हृदय को उत्पन्न करने के लिए कितना सिंसियरिटी और कमिटमेंट से करती है, एंड इन दैट ही विल हेल्प अस। और उसके अंदर जो है वो परमेश्वर जो है मुझे मदद करता है। तो प्रिय लोग, आज के दिन हम ये ध्यान में रख ले कि शुद्ध मन या शुद्ध हृदय को अपने जीवन में उत्पन्न करेंगे, और इस शुद्धता के जब हम आएंगे, तभी जाकर हम परमेश्वर की सौंदर्य को, परमेश्वर की शुद्धता को, परमेश्वर की सुंदर रूप को और गॉड्स ब्यूटी को, उसकी महिमा को हम देख पाएंगे। क्यों हम परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं? बिकॉज क्यों पता है? हम अपने फिजिकल इससे नहीं देख पाएंगे। जब तक हमारा हृदय शुद्ध ना हो, तब तक हम उनको नहीं देख पाएंगे। Why I need to be pure in heart? क्यों मुझे शुद्ध हृदय का शुद्ध बनना है? क्योंकि मुझे परमेश्वर को देखना है, तो मुझे शुद्ध बनना है। थॉमस मैंटन वे व्यक्ति इस तरह से कहते हैं कि द प्योर हार्ट ओनली विल सी गॉड, एक शुद्ध हृदय ही परमेश्वर को देख पाएगी करके वचन कहता है। जुने नियम में हमने देखा है कि कई लोगों ने परमेश्वर के दर्शन को, परमेश्वर को रूबरू, जैसे मूसा ने उन्होंने देखा, थोड़ा बैक साइड उन्होंने देखा करके कहता है, और यशायाह ने उन्होंने परमेश्वर के दर्शन को देखा, और कई लोगों ने जो है परमेश्वर के दर्शन को अपने जीवन में उन्होंने देखा करके, बट दे वर ऑल प्योर इन देयर हार्ट, वे सारे लोग जो है अपने हृदय में शुद्ध थे। अब प्रश्न ये उठता है कि आया हाउ टू कीप ऑन दिस हार्ट प्योर, या फिर इस प्योरिटी ऑफ हार्ट को हम कैसे डेवलप करते रहे हर दिन। ये आज मेरा भी प्रयास है, हम सभी का प्रयास यही रहेगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरा मन एकदम शुद्ध है, मेरा हृदय एकदम शुद्ध है। इट्स ए प्रोसेस, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। और इसको शुद्ध रखने के लिए मुझे क्या करना है पता है? 5 बातें करना है। मैंने पॉइंट्स ही बताऊंगा और ज्यादा ये नहीं करूंगा, पॉइंट्स बताऊंगा। 5 बातें। सबसे पहले, फर्स्ट लिसन टू दिस, बी हॉनेस्ट विद गॉड अबाउट योर हार्ट। आपके हृदय के बारे में, आपके दिल के बारे में परमेश्वर के सामने कुछ भी मत छुपाइए, ईमानदारी से सब कुछ उनके सामने व्यक्त कीजिए। बी हॉनेस्ट, सच्चाई और ईमानदारी से प्रभु के सामने आप अंगीकार करें। भजन संहिता 51 साम्स, दाऊद राजा अपने पाप को कबूल करता सच्चाई के साथ। दूसरा, हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए सुनिए, जकरयाह उसका 13वां अध्याय 1 वचन कहता है कि तुम एक ऐसे फुवारे, फाउंटेन, कम टू द फाउंटेन, एक ऐसे फुवारे के पास आओ जहां पर शुद्धता तुम्हें मिलती है। परमेश्वर स्वयं शुद्ध करता है तुम्हें, हर एक गंदगी से तुम्हें धोकर शुद्ध करने वाला है। जकरयाह 13:1, यानी कि पहले एक्नॉलेज तो करो प्रभु के सामने, हॉनेस्ट रहो। सेकेंड, उस फाउंटेन के पास आओ। कौन है वो फाउंटेन? मेरा यीशु मसीह, जो स्वयं शुद्ध होकर अपने जीवन को जिया, और उनकी शुद्धता के कारण, उनकी धर्मपन के कारण आज मुझे धार्मिकता मिली है। सो कम टू दिस फाउंटेन, ये फाउंटेन के पास आइए। कहा, जो भी मेरे पास आएंगे वो मेरे अंदर से जब पानी पिएंगे, जल को पिएंगे, वो खुद एक फुवारे बनेंगे। सो आज इस फाउंटेन के पास मुझे आना है। थर्ड, प्रेरितों के काम उसका 15वां अध्याय 8वां और 9वां वचन कहता है कि परमेश्वर मेरे हृदय को जानता है और उन्होंने मुझे पवित्र आत्मा दी है, और उसके द्वारा, विश्वास के द्वारा मुझे शुद्ध भी किया है। These 2-3 words are very important. Purify your hearts with the faith and the Holy Spirit. अपने हृदय को आप हर प्रतिदिन में विश्वास के साथ और पवित्र आत्मा के द्वारा आप शुद्ध रखें। चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है,
Fill your hearts with God's word. Every day, हर एक दिन जो है आप अपने हृदय को, अपने दिल को जो है वचन से आप भरते जाए। भजन संहिता 119:11 वचन ये कहता है कि आप एक जवान अपने हृदय को किस तरह से शुद्ध रखे। कैसे शुद्ध रखेगा? परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने के द्वारा अपने आप को, अपने हृदय को शुद्ध रखेगा। और इसलिए प्रवादी जेरेमाया, प्रॉफिट जेरेमाया ये कहता है, लॉर्ड आई एम आस्किंग दैट यू राइट योर वर्ड्स लॉ ऑन माय हार्ट। परमेश्वर तू मेरे हृदय के ऊपर तू जो है खेद दे तेरे वचनों को, तेरी आज्ञाओं को। व्हाट इज आस्किंग? अ हार्ट दैट वुड हैव द वर्ड ऑफ गॉड रिटन ऑन इट। परमेश्वर का वचन उसके अंदर लिखा हुआ हृदय जो है वो अपेक्षा करते हैं। सो टुडे शुद्ध रखना है अपने हृदय को, तो आप वचन को उसके अंदर बोए। पांचवी बात ये है, हमेशा ये बात ध्यान में रखे कि हमारा जीवन ये यहाँ पर अंत नहीं है। आनंद काल का जीवन, स्वर्ग का जीवन वहां पर होगा। परमेश्वर जो पवित्र है तो पवित्र को ही वहां पर लेगा। उस बात को ध्यान में रखकर हमेशा ये आशा में हम जिए कि लॉर्ड आई वांट टू सी यू, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो आज इस बात को मध्य नजर रखते हैं, अपने हृदय को शुद्ध रखें, क्योंकि जो अपने मन को शुद्ध रखता है वही परमेश्वर को देखेगा और वही धन्य कहलाएगा। तो आज मेरे और तुम्हारे जीवन के अंदर हम किस तरह से इस परमेश्वर को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। एक बार हेलेन केलर, आप लोगों ने सुना होगा इनके बारे में, एक अंधी स्त्री थी जिन्होंने बहुत ब्रेल ये सब उन्होंने उत्पन्न किया है। उनको पूछा गया कि एक अंधा होना, एक अंधी होना, हाँ, कितनी दुख की बात है ना। इस तरह से उन्होंने कहा, फिजिकली शी वाज ब्लाइंड। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया पता है? उन्होंने उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर है, देखिए। इट्स बेटर टू बी ब्लाइंड एंड सी विथ योर हार्ट देन हैव टू आईज एंड सी नथिंग। मतलब ये कहती है कि हम फिजिकली अंधे हो रहना अच्छा है, ताकि हम हृदय की आंखों से चीजों को देखें और महसूस करें। दो आंख रहते हुए भी हम ना देखें, इससे बेहतर है। कितनी बड़ी बात है। दोनों आंख रहते हुए भी और ना देखे, इससे बेहतर है कि हम दोनों आंख ना रहे और हृदय से देखें। तो आज मैं और आप अपने आत्मिक जीवन को जीते समय, आत्मिक जीवन की आंखें जो है वो है मेरा हृदय, और इस शुद्धता के हृदय के द्वारा जब हम देखेंगे परमेश्वर अपने सौंदर्य, अपने महिमा, अपनी प्रसन्नता को हमारे ऊपर प्रकट करे। आइए अपने शुद्ध हृदय के द्वारा उस प्रभु को देखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन इन वचनों के लिए जो आपने आज हमें दिया है। पिता, हम सारे लोगों के जीवनों में एक शुद्ध मन, एक शुद्ध हृदय उत्पन्न करे। पिता, जो वचन हम सुने हैं इन वचनों के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता करे, और आपकी सौंदर्य, आपकी प्रसन्नता और आपकी विशेष महिमा को पिता हम देख पाए। ऐसे अनुग्रह हम सभी को देने के लिए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಾಹ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ತ್ರೇಕದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। कुछ अनाउंसमेंट्स थोड़े इम्पोर्टेंट हैं। जैसे हमारे रेगुलर अनाउंसमेंट्स है वो है संडे सुबह 11 बजे हमारा ऑनलाइन सर्विस चलाया जाएगा। संडे स्कूल एक्टिविटीज ये जो है पूरे हफ्ते भर चलाई जाएगी और बच्चों को भेजा जाएगा वीडियोस। TCF और MYF संडे जूम शाम को 6 बजे, वेडनेसडे की आराधना इसी तरह से 8 बजे चलाई जाएगी, और फ्राइडे को, शुक्रवार को बाइबल को इसके ऊपर बाइबल स्टडी होगा 8 बजे। सैटरडे के दिन हमारी बाइबल स्टडी सिस्टमैटिक थियोलॉजी हम प्रारंभ किए हैं, प्लीज जुड़िए इसके अंदर। और ये
सैटरडे शाम को 7 बजे चलाई जाएगी। और उसी तरह से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग अपने चेन प्रेयर्स में भाग लेते जाएं और प्रभु के अंदर प्रार्थना में बढ़ते जाएं। विशेष तौर से एक सूचना जो मैं अब तक देते आया था कि हम आएंगे और आपके घर से डब्बे लेंगे, डब्बे कलेक्शन किया जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आने वाला संडे से हम ये खाने के कलेक्शन जो है करने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोगों के पास अभी काम नहीं है, काफी दिक्कत है, काफी प्रॉब्लम्स है। मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा जो लोगों के काम चालू है, जो लोग देना चाहते हैं, प्रभु परमेश्वर के लिए भेंट अर्पण करना चाहते हैं। और हमारे इस पिछले 5 महीनों के अंदर, 4.5 महीनों के अंदर हमें हमारे चर्च के ऑफरिंग्स में we have not got any money, हम लोगों को कुछ भी पैसा नहीं मिला है। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि हम परमेश्वर के मंदिर में ये प्रभु के भेंटों को और जो भी हम काणके हैं उसको अर्पण करें। और जो डब्बे आपके पास दिए हैं ये इस तरह से कलेक्शन किया जाएगा। आप अपने स्टीवर्ड्स को कांटेक्ट करें, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಗ್ರಾಣಿಕರನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್। ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದಿವಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಇಡೀ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ತನಕ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾನವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಹೇಗೆ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂಡೇ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೋಲಿವಾಡ ಏರಿಯಾದವರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ। ನಾಗೇಶ್ ನಡುಲ್ಕೆರೆ ಇವರು ಇರುತ್ತಾರೆ। ಸೋಮವಾರದ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಹಮಾರೆ ಚರ್ಚ್ में आकर देना है। ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಮುಕುಂದ್ ನಗರ್ನವರು ಜ್ಞಾನ್ ಮಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ರವಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕುಟುಂಬದವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ। ಮಂಗಳವಾರದ ದಿವಸ ನಾಲಂದ ಮತ್ತೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಈ ಏರಿಯಾದವರು ಸಾಮಿಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಗ್ರಾಣಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ। ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆರಾಧನೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರಾಧನೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಬುಧವಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ। ಗುರುವಾರದ ದಿವಸ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಮಾಂಗ್ವಾಡ ಏರಿಯಾ ಯೇಸು ಭಾಸ್ಕರ್ ಇವರ ಏರಿಯಾನವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ। ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿವಸ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರ್, ಒಂದು ಖಾಡಿ ಏರಿಯಾ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರ್ ಜ್ಞಾನ್ ಮಿತ್ರಪ್ಪ ಕೋನ್ಗಾ ಇವರು ಏರಿಯಾನವರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ। ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಉಗ್ರಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಾವು ಡಬ್ಬೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ರಿಸೀಟ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ। ಮತ್ತೆ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ರಿ, ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತಕೊಂಡ್ ಬನ್ರಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಆಗಿದೆ। ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಸಂಡೇ ದಿವಸ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಬರುವ ಭಾನುವಾರ ದಿವಸದಿಂದ ನಾವು ಇಡೀ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಉಂಟು। ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ದೇವರು ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಆಗಿದೆ। ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ। God bless you all. Amen.
ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವ ನಿಂಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಕೃಪೆ ಕನಿಕರವ ತೋರಿಸಯ್ಯ ನಿನ್ ವಾತ್ಸಲ್ಯವ ನಿಂಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಕೃಪೆ ಕನಿಕರವ ತೋರಿಸಯ್ಯ ಪಾಪವ ಮಾಡಿನ ದೋಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನ ಪಾಪವ ಮಾಡಿನ ದೋಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು ನನ್ನ ದೋಷಗಳ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು ನನ್ನ ದೋಷಗಳ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವೆನು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವೆನು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ 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 ದೇವರೇ ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬಿಡು ನನ್ನ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸು ಕರ್ತನೇ ನಾನು ದ್ರೋಹಿ ಎಂದು ನಾನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಪಾಪವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೆ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವುದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿಬಿಡು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಬೇಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸು ನನ್ನನ್ನು ನೂತನಪಡಿಸು ನಿನ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿನ್ ಸತ್ಯವನ್ನು ನನ್ನಾಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಯ್ಯ ನಿನ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿನ್ ಸತ್ಯವನ್ನು ನನ್ನಾಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಯ್ಯ ಉತ್ಸಾಹ ಸಂತೋಷ ನಿನ್ ರಕ್ಷಣಾನಂದ ಉತ್ಸಾಹ ಸಂತೋಷ ನಿನ್ ರಕ್ಷಣಾನಂದ ನಿರ್ಮಿಸು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು